Next, we are going to start with the new chapter, that is Principle of Inheritance and Variation. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to the baby elephant, not to some other animals? Or why a mango seed forms only a mango plant, not any other plant? Given that they do, are of the offsprings identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other, or sometimes even so different? These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. The subjects deal with the inheritance as well as the variation of the characters from the parents to the offsprings. Inheritance is a process by which characters are passed on from the parents to the progeny. It is the basis of the heredity. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. Humans know from the early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of the variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of the plant and animal to selectively breed and select for the organism that possessed desirable characters. For example, through artificial selection and domestication from the ancestral wild cow, we have well-known Indian breed that is Sahiwal cow in Punjab. We must, however, recognize that our ancestors know about the inheritance of the character and variation. They had very little idea about the scientific basis of this phenomena. ठीक है. अब हमें देखना है कि पीस के 7 करेक्टर्स थे, जिनमें से डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट हाइट की. ठीक है. तो प्लांट हाइट टॉल है तो क्या है, डोमिनेंट है. ड्राफ है तो क्या है, रिसेसिव है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के पोजीशन की. तो फ्लावर ये जो है हम बेस्ट आगे टेबल से भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. देखो ये हुआ. ठीक है. स्टेम की हाइट अगर पूछी जाए तो टॉल जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है. और ड्राफ क्या होता है, वो रिसेसिव होता है. अगर फ्लावर के कलर की पूछी जाए तो वॉयलेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है. और वाइट क्या होता है, रिसेसिव होता है. फ्लावर की पोजीशन जो होती है वो एक्सियल जो होती है वो डोमिनेंट होती है. और टर्मिनल जो होती है वो रिसेसिव होती है. पॉड की शेप पूछी जाए तो इन्फ्लेटेड जो होती है वो डोमिनेंट होती है. और कंस्ट्रक्टेड जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड वो रिसेसिव होती है. पॉड का कलर जो है ग्रीन डोमिनेट होता है. येलो जो होता है रिसेसिव होता है. सीड का शेप राउंड जो होता है डोमिनेट होता है. रिंकल रिसेसिव होता है. और सीड का कलर जो है येलो डोमिनेट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में. ठीक है. It was during the mid-19th century that the headway was made in the understanding of the inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on the garden pea for the 7 years 1856 to 1863 and proposed किया law of inheritance in the living organism. उन्होंने law of inheritance propose किया living organism में. During Mendel's investigation, जब मेंडल की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी into the inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to the problems in biology. His experiment had a large sampling size, which gives greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his inferences from the experiment on the successive generation of his test plant proved that his results pointed to the general rule of the inheritance rather than being unsustained ideas. Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two offspring opposing traits, that is tall or dwarf plant, yellow or green seeds. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse nature of observations and the complexity inherent in them. मेंडल जो है उन्होंने कंडक्ट किया सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स.
ठीक है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव बीन undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for the several generation. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी, उन्होंने जो है मेंडल ने सेलेक्ट किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ सेलेक्ट की थी 14 एज पेयर which were similar except for one character with contrasting traits. ठीक है। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated or constructed green और येलो पोट्स, टॉल और ड्राफ्ट प्लांट्स। ठीक है। वाला डायग्राम तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे inheritance of one gene. Let us take an example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed the tall and dwarf plants to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of the cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. This generation is also called filial 1 progeny or F1. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents. None were dwarf, इनमें से कोई भी dwarf नहीं था. He made similar observation for the other pair of traits. He found that the F1 always resemble कर रहा था either one of the parents से, and the trait of the other parent was not seen in them. ठीक है। Mendel then self-pollinated the F1 plant and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. The proportion of the plant that were dwarf were 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That is all the offsprings जो है वर इधर या तो टोल थे या ड्राफ्ट थे, नॉन वर ऑफ द बिटवीन हाइट। ठीक है। सिमिलर रिजल्ट जो है वर ऑब्टेन किया गया विद अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडी। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन, वाइल एट द F2 स्टेज बोथ द ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द प्रोपोर्शन 3:1. The contrasting trait did not show any blending at the either F1 and F2 either F1 और F2 स्टेज पे। ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेजेस इन मेकिंग अ क्रॉस इन अ पी में क्रॉस कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो है रिमूवल ऑफ द एंथर, एमेस्कुलेशन करना पड़ता है। रिमूवल ऑफ द एंथर एमेस्कुलेशन करना पड़ता है। एक फ्लावर दे रखा है, ठीक है, पेटल दे रखी है, ये स्टेमन दे रखा है, सॉरी स्टिग्मा दे रखा है, ये एंथर है, ये स्टेमन है, ये कार्पल है। ठीक है। ये स्टेमन है, ये एंथर है, ये कार्पल है, ये स्टिग्मा है और ये पेटल है। ठीक है। सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ एंथर करते हैं, एमेस्कुलेशन करते हैं। ठीक है। ये जो है मेल पेरेंट है, इसमें जो होता है फीमेल पेरेंट में जो हमने एमेस्कुलेशन कर दिया, ये रिमूवल ऑफ एंथर कर दिया, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन यानी पोलिनेशन करवा दिया। ठीक है। यहाँ पे जो है वो आगे पोलिनेशन करवा के इनके सीड्स ग्रो गए तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्लांट्स आ गए। ठीक है। हाँ जी, तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने जो है प्रपोज किया दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन unchanged from the parents to the offspring through the gametes over successive generation. He called these things as factors. Now we call them as genes. Genes therefore are the unit of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. That is, they are slightly different form होती है of the same gene. If we use alphabetical symbol use करें for each gene, then the capital letter जो होता है वो use होता है for the trait जो कि expressed हुआ था F1 stage पे, and the small alphabet for the other traits. ठीक है। For example, in case of the character, of the height, capital T जो होता है वो use होता है for the tall trait और small t जो होता है for the dwarf.
एंड यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है आर एलिलीज ऑफ ईच अदर. Hence in the plant the pair of alleles for the height would be capital T small t or small t small t. Mendel also proposed that in true breeding, tall or dwarf pea varieties, the allelic pair of the genes for the height are identical or homozygous capital T small t respectively. ठीक है, capital T and small t are called the genotype of the plant, while the descriptive term tall or dwarf are the phenotype. What then would be the phenotype of the plant that had a genotype capital T small t? ठीक है, as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like that the capital T plant parent in appearance. He proposed that in a pair of dissimilar factor में one जो होता है dominate करता है other को, as in F1, and hence is called dominant factor while the other factor is recessive. ठीक है, in this case capital T यानी for tallness is dominant है over small t for dwarfness जो कि recessive है. He observed identical behavior for all the characters or trait pairs that he studied. It is convenient and logic to use the capital and lower case of the alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. ठीक है, do not use capital T for the tall and small t for the dwarf because they will create difficulty to remember whether T and D are the alleles of the same gene or characters or not. ठीक है, alleles can be similar as in case of alleles जो होता है वो सिमिलर भी हो सकती है एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, और डिसिमिलर भी हो सकती है जैसे कि इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. ठीक है, हमने पेरेंटल लिया, एक टोल लिया, एक ड्राफ्ट लिया. ठीक है, F1 जनरेशन हमारे पास बनी टोल, सारी टोल बनी, इनको हमने सेल्फिंग कराई उसी से. ठीक है, इनके बीच में सेल्फिंग कराई तो हमें F2 जनरेशन में जो है वो 3 जो है टोल मिली, एक ड्रॉप मिला. ठीक है, ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. हाँ, सिंस जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है इज़ हेट्रोजाइगस फॉर द जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर यानी हाइट, इट इज़ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. हाँ जी, तो इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. From the observation that the recessive जो parental trait होता है is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and the dwarf plants produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete. This segregation of the allele is a random process होता है, and so there is a 50% chance of the gamete containing either allele, as has been verified by the result of the crossing. In this way, the gametes of the tall capital T plant have the allele capital T, and the gametes of the dwarf plant small t have the allele small t. During fertilization of the two allele, capital T from the one parent say through the pollen and small t from the other parent then through the egg are united to produce the zygote that has one capital T allele and one small t allele. In other words, the hybrid have capital T small t. Since these hybrids होते हैं वो contain करते हैं alleles which express contrasting trait जो कि express करती हैं contrasting traits को, the plant are heterozygotes. The plant क्या होते हैं heterozygous होते हैं. The production of gametes by the parent, the formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from the diagram called Punnett square as shown in the figure. It was developed by a British genetist Reginald C. Punnett. It is graphical representation to calculate the probability of the all possible genotype of the offsprings in a genetic cross. The possible gametes are written on the two sides, usually top row and left column
All possible combinations are represented in the box below in the square which generates a square output from. ठीक है. The Punnett square shows the parental tall capital T male and the dwarf small t female plant, the gametes produced by them, and the F1 capital T small t progeny. The F1 plants of the genotype capital T small t are self-pollinated. The symbol जो है प्लस वाला जो है तो फीमेल के लिए और जो एरो वाला होता है मेल के लिए होता है. ठीक है. ऑफ F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली. The F1 plant of the genotype capital T small t when self-pollinated produce करता है gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion. When fertilization takes place, the pollen grain of the genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of genotype capital T as well as the genotype of small t. ठीक है. Also the pollen grain जो होता है of the genotype स्मॉल टी जो होता है उसके पास भी 50% चांस होता है कि वो ऑफ पोलिनेटिंग एग ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट्स कैन बी ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है. ठीक है. हाँ जी. पुनेट स्क्वायर जो होता है वो यूज टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड कोर्स कंडक्टेड बाय द मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स. ठीक है. अब देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास टॉल प्लांट था और ड्वार्फ प्लांट था. उसके गैमेट्स निकले कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. इनसे जो है चारों F1 जनरेशन जो चारों प्रोजेनी है वो क्या निकले कैपिटल टी स्मॉल टी चारों के चारों जो कि क्या थे टॉल थे. अब इन टॉल प्लांट को कैपिटल टी को जो है सेल्फ क्रॉस करवाया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी ग्राफ बने. इसमें जो है हमारे पास F2 जनरेशन में जो है 3 प्लांट तो क्या एक प्लांट बना कैपिटल टी, 2 प्लांट बने कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 प्लांट बना स्मॉल टी. ठीक है. यानी कि फिनोटिपिक रेशियो अगर हम निकालें तो टॉल इज टू ड्राफ आया 3:1. जीनोटिपिक रेशियो निकाले तो 1:2:1 आया. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज़ इजीली सीन दैट द 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू द कैपिटल टी 1/2 लीड्स टू द कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 to the small t. Though the F1 have the genotype of the capital T small t, but the phenotypic character seen is tall. The F2 3/4 of the plants जो है वो tall थे, where some of them were capital T while other जो थे capital T small t थे. Externally, it is not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T and small t capital T small t. Hence, within a genotypic pair capital T small t, only one character जो है character capital T tall is expressed. Hence, the character capital T or tall is said to be dominant over the other allele small t or dwarf characters. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall. ठीक है. तो उनका जीनोटाइप क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी था. एंड इन F2 3/4 ऑफ द प्लांट्स जो थे वो टोल थे. दो जीनोटाइपिकली 1/2 जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी और 1/4 जो है कैपिटल टी थी. दिस लीड टू द फिनोटिपिक रेशियो जो आती है वो क्या आती है 3:4 आती है. यानी 3:4 यानी 3 क्या होंगे टोल होंगे और 1/4 क्या होगा ड्राफ होगा. ठीक है. 3:4 में जो है क्या है 1/4 तो क्या है टी कैपिटल टी और 1/2 क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. बट जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलती है 1:2:1 मिलती है. द 1/4 1/2:1/4 जो हमारी वो आती है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मेथड इज अ मैथमेटिकल कंसिडरेबल है टू द फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन यानी कि ax + by का होल स्क्वायर. ठीक है. That was the gamete bearing genes capital T or small t in equal frequency of 1/2. The expression is expressed as 1/2 capital T + 1/2 small t जो है अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वही आएगी जो जीनोटिपिक रेशियो आती है क्या 1/2
4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी. Mendel self-pollinated the F2 plants and found that draft F2 plants जो है वो continue to generate draft plants in F3 and F4 generation. He concluded that the genotype of the draft were homozygous है small t. ठीक है. From the preceding paragraph it is clear that the genotypic ratio can be calculated using genotypic ratio को हम जो है calculate कर सकते हैं using mathematical probabilities by simply looking at the phenotype of the dominant trait. It is not possible to know the genotypic composition. This is, for example, whether the tall plant from the F1 or the F2 has the capital T or small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of the tall plant at the F2, Mendel crossed the tall plant को जो है cross किया from F2 से with the draft plant के साथ जो है उन्होंने क्रॉस किया. दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस. इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हेयर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप. उस जीनोटाइप जो हमें निकालना है इस क्रॉस किया जाता है विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग. द प्रोजेनी ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली एनालाइज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. वो फिगर जो है वो शो कर रहा है रिजल्ट ऑफ द टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर जहाँ पे हमने वॉयलेट कलर फ्लावर को जो है वो जो कि डोमिनेंट था ओवर वाइट कलर फ्लावर स्मॉल w इनको क्रॉस करवाया है. यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है एक टेस्ट क्रॉस की. ठीक है. तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है या तो देखो जो है वो होमोजाइगस जो देखो अब ये जो है यहाँ पे हमने एक प्लांट लिया डोमिनेंट फिनोटाइप का प्लांट है. ठीक है. फिनोटाइप जिसका डोमिनेंट है. हमें इसका जीनोटाइप जो है अननोन है यहाँ पे जानना है. ठीक है. हम जो है एक बार इसको ठीक है रिसेसिव प्लांट से जो है अब मान लो इसके दो पॉसिबिलिटी है. या तो इसमें जो है दोनों जो है वो डोमिनेंट होंगे या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील होगा. ठीक है. तो हमने जो है क्या करा कि होमोजाइगस रिसेसिव से रिएक्ट करवा दिया इसका क्रॉस करवा दिया. अगर जो है ये होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट होगा तो जो है रिज़ल्ट जो टेस्ट क्रॉस का वो आएगा वो कि सारे कैरेक्टर जो है प्रोजेनी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगे. अगर सारे प्रोजेनी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या था होमोजाइगस डोमिनेंट था. ठीक है. और रेशो जो है 1:0 आएगा. पर अगर वो एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट एलीली हुआ उसमें टोल प्लांट में या डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट में तो जब हम उसको टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो आधे प्रोजेनी जो है वो टोल के डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे और आधे जो है वो रिसेसिव जो है क्या करेंगे रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे. ठीक है. और इसका रेशियो है 1:1 आएगा. 1:1 आधे जो है वो डोमिनेंट वाले होंगे आधे जो है रिसेसिव वाले होंगे. हाफ ऑफ द फ्लावर जो है वॉयलेट होंगे हाफ ऑफ द फ्लावर क्या होंगे वाइट होंगे. 1:1 आता है तो यानी हेट्रोजाइगस वो डोमिनेंट थे. और अगर जो है 1:0 आता है तो क्या होता है होमोजाइगस थे. ठीक है. होमोजाइगस डोमिनेट थे. बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी मेंडल ने जो है प्रपोज किया 2 जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. टुडे दीज रूल्स जो है हम इनको प्रिंसिपल या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं. फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं एंड सेकेंड लॉ जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं. सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है. सबसे पहला पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैरेक्टर्स जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय डिस्क्रीट यूनिट जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं. कैरेक्टर्स जो होता है वो डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं जिसको फैक्टर्स बोलते हैं. फैक्टर जो होते हैं वो अकर करते हैं पेयर में. किस में अकर करते हैं पेयर में. इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में एक मेंबर जो होता है ऑफ पेयर जो होता है डोमिनेट करता है अदर को जो कि रिसेसिव है. लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो यूज़ होता है टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of the 3:1 obtained at the F2. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में. दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है
This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in the F1 stage. दो द पेरेंट जो होता है वो कंटेन करता है टू एलेलीज ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स ऑफ द एलेली ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर. Of course, homozygous parent जो होता है प्रोड्यूस करता है all gametes that are similar, while in heterozygous one produce two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कोई डायग्राम, ये तो देख लिया था हमने. नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जब एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेड्स इन द अदर प्लांट्स, अदर ट्रेड्स को अदर प्लांट्स में यूज़ करके, इट वॉज फॉर फाउंड दैट सम टाइम F1 जो है हैड अ फिनोटाइप जो कि रिजेंबल नहीं कर रहा था ईदर ऑफ द पेरेंट. काफ़ी बार जो है F1 में जो है ऐसे जो है फिनोटाइप आ रहा था जो कि रिजेंबल नहीं कर रहा था ईदर ऑफ द पेरेंट से. ठीक है, एंड वॉज इन बिटवीन, और उनके दोनों के बीच का था. ठीक है. द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन बोलते हैं, एंटी रैंडम स्पीशीज, रैंडम स्पीशीज बोलते हैं. हाँ जी, तो हम लोग बोल रहे थे कि जो है कुछ प्लांट्स थे, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 जो है वो हैड अ फिनोटाइप जो कि रिजेंबल नहीं कर रहा था ईदर ऑफ द पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था और उन दोनों के बीच का था. ठीक है. द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस इन द डॉग फ्लावर, यानी कि डॉग फ्लावर यानी कि स्नैपड्रैगन जिसको बोला जाता है, या फिर एंटी रैंडम स्पीशीज़. एंटी रैंडम स्पीशीज़ जो है वो गुड एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इन अ क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड कलर फ्लावर थे एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट कलर प्लांट्स, द F1 जो कैपिटल आर और स्मॉल आर बना वो पिंक कलर का था. कैसा था? पिंक कलर का. ठीक है. व्हेन द F1 वो सेल्फ पोलिनेटेड, जब हमने F1 को जो है सेल्फ पोलिनेट करवाया, द F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशो जो है R:R, यानी रेड बना 2:2 जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक बना, और 1R जो है वो स्मॉल आर जो है वाइट बना. ठीक है. when the genotypic ratio were exactly, here the genotypic ratio जो था वो exactly as we would expect in any मेंडल. जीनोटाइप तो सेम था जो कि हम किसी मेंडल मोनोहाइब्रिड मेंडल क्रॉस में एक्सपेक्ट करते हैं, पर जो फिनोटाइपिक रेशियो था दैट हैव चेंज फ्रॉम 3:1 से जो है वो चेंज हो गया. वट हैपन एज दैट आर जो है कैपिटल आर जो है वॉज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट, वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था ओवर स्मॉल आर, एंड दिस मेड इट पॉसिबल डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक फ्रॉम द रेड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर वाइट. ठीक है. अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. उससे पहले जो है इसमें देखते हैं, ये जो डायग्राम जो है शो कर रहा है रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन अ प्लांट स्नैपड्रैगन. रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट इन अ प्लांट स्नैपड्रैगन वेयर वन एलेली जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर द अदर एलेली. ठीक है. यहाँ पे हमने रेड कलर पेरेंट जनरेशन था, रेड कलर का फ्लावर लिया RR, वाइट कलर के फ्लावर से करवाया स्मॉल आर, गैमीट्स बने कैपिटल आर और स्मॉल आर. इनको F1 बनवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक बने. जब इनके गैमेट्स लगवाए तो जो है F2 जनरेशन में एक जो है रेड बना, दो पिंक बने और एक वाइट बना. ठीक है. फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम आई थी F2 जनरेशन 1:2:1 1:2:1. ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? डोमिनेंस होता क्या है? वाई आर सम एलेली जो है डोमिनेंट है ओवर एंड सम रेसेसिव है? टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर जीन डज. ठीक है. ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक जीन करता क्या है. एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन करता है इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन की 2 कॉपीज होती है एज अ पेयर ऑफ एलेलीज. ठीक है. नाउ दीज 2 एलेली नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल. जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो. जैसे कि हेट्रोजाइगोट की बात करें तो वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस that it had undergone, about which you will read further on.
विच जो चेंज हुई है जो कि मॉडिफाई कर देती है इंफॉर्मेशन दैट द पर्टिकुलर जीन कंटेन्स, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम, एंजाइम प्रोड्यूस करने की जो है इंफॉर्मेशन है उसके पास। नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, इस जीन की 2 कॉपीज हैं। द 2 एलीलिक फॉर्म्स, लेट अस एज्यूम दैट एज इन मोर कॉमन द नॉर्मल एलील जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल जीन दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबसेट एस। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड जीन जो है कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन, या लेस एफिशिएंट जीन हो सकता है नॉर्मल जीन प्रोड्यूस करे या फिर लेस एफिशिएंट जीन प्रोड्यूस करे। दूसरा है नॉन फंक्शनल जीन प्रोड्यूस करे। तीसरा है कि कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलीली जो है इक्विवेलेंट है टू द अनमॉडिफाइड एलीली, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट एज अ रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एस, ठीक है। सच इक्विवेलेंट एलीली पेयर्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। सच इक्विवेलेंट जो एलीली पेयर होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। बट इफ द एलीली जो है प्रोड्यूस करे नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस ना करें, द फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। The phenotype trait will only be dependent on the functioning of the phenotype या trait जो है will only be dependent होगा on the functioning of the unmodified allele. The unmodified allele यानी functioning allele जो कि represent करती है original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the unmodified allele. Unmodified allele यानी कि फंक्शनिंग एलीली जिसको बोलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल फिनोटाइप को, वो डोमिनेंट एलीली होती है। एंड द मॉडिफाइड एलीली जनरली जो है रिसेसिव एलीली होती है। हैंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो सीन होता है ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की, ठीक है। टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल ईदर ऑफ द 2 पेरेंट्स देन डोमिनेंस और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जो प्रोजेनी जो रिजेंबल करती है दोनों पेरेंट्स को। अ गुड एग्जाम्पल इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ए डिफरेंट टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल जो कि डिटरमाइन करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुप्स जो है आर कंट्रोल बाय जीन, आई से कंट्रोल होता है, यानी कैपिटल आई से कंट्रोल होता है, जीन कैपिटल आई से कंट्रोल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैव शुगर पॉलीमर्स जो कि प्रोट्यूड करते हैं फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ द शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन, ठीक है। कौन सी टाइप की शुगर हो गई वो जीन कंट्रोल करता है। द जीन आई जो है उसके पास 3 एलीली होती है, कैपिटल आई, कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और स्मॉल आई। द एलीली आई कैपिटल ए और एंड आई कैपिटल बी जो होता है प्रोड्यूस करता है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म प्रोड्यूस करता है शुगर की। वाइल एलीली जो है स्मॉल आई जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन जो है पोजेस करेगा एनी 2 ऑफ द 3 जीन एलीली, 3 जीन एलीली में से कोई भी 2 जो है वो कंटेन करेगा। आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई। इन अदर वर्ड्स व्हेन जो है आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई जो है वो प्रेजेंट होंगे तो ओनली आई कैपिटल ए जो है वो एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज जो है स्मॉल आई जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। एंड व्हेन आई कैपिटल बी एंड स्मॉल आई जो है प्रेजेंट होंगे तो आई कैपिटल बी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बट व्हेन आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी जो है वो आर प्रेजेंट टूगेदर दे बोथ एक्सप्रेस इन देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। हैंस रेड ब्लड सेल हैव बोथ द आर ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर दोनों ही होती है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलीलीज there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible। 6 different combination होते हैं जो कि possible होंगे and the therefore a total of the 6 different genotype of the human ABO genotype जो होते हैं genotype मिलते हैं human ABO blood type, ठीक है। genotype 6 genotype मिलते हैं। I capital A, I capital A, I capital A, I capital B, I capital A, small I capital A, ठीक है। I capital B, I कैपिटल बी, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी स्मॉल आई और आई स्मॉल आई, ठीक है। ये वाले जीनोटाइप पॉसिबल है।
हाँ, तो डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है ऑल्सो प्रोवाइड करता है गुड एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का भी जो है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है अच्छा एग्जाम्पल देता है। किसका किसका देता है? कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म का। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 यानी 3 एलिली जो है वो गवर्न कर रहे हैं सेम करेक्टर को। मोर देन 2 एलिली यानी कि 3 एलिली जो होता है वो गवर्न कर रहा है सेम करेक्टर को। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलिलीज कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है वो कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज जो है वो की जाती है, तभी जो है मल्टीपल एलिलिज्म को आप फाउंड कर सकते हो। ओकेजनली एक सिंगल जीन प्रोडक्ट जो होता है मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ओकेजनली एक सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है, एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट जो होता है प्रोड्यूस कर सकता है मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार सिंथेसिस पी सीड्स में जो स्टार सिंथेसिस होता है वो कंट्रोल होता है बाय वन जीन। उसके 2 एलील होते हैं, कैपिटल B एंड स्मॉल b। स्टार इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल B होमोजाइगोट एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च गेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल b जो होमोजाइगोट है वो हैज़ लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस और प्रोड्यूस करता है स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल B जो सीड्स है वो राउंड होंगी और स्मॉल b सीड्स जो होते हैं वो रिंकल्ड होंगे। हेट्रोजाइगस जो होता है प्रोड्यूस करेगा राउंड सीड्स एंड सो कैपिटल B सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील माना जाता है। ठीक है, बट स्टार्च ग्रेन जो है प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज होंगे। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो राउंड ही प्रोड्यूस करेगा, पर अगर जब हम साइज़ की बात करें बट द स्टार्च ग्रेन जो होता है प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज जो होता है वो इंटरमीडिएट होगा इन कैपिटल B स्मॉल b। सो इफ स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर एज द फिनोटाइप, स्टार्च ग्रेन साइज को हम अगर फिनोटाइप माने तो देन फ्रॉम दिस एंगल द एलीली जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस जो होता है वो ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का कि एक जीन जो है वो डोमिनेंट ही होगी और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। ठीक है, डोमिनेंस जो होता है ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन या फिर उसके प्रोडक्ट का जिसके लिए उसके पास इंफॉर्मेशन है। ये डिपेंड करता है एज मच एज ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ a particular phenotype from this product as it does for the particular phenotype that we has chosen to examine। ठीक है, जितना कि डिपेंड करता है कि जीन का प्रोडक्ट क्या होगा या फिर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, जितना कि इस पे डिपेंड करता है उतना ही उस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्टिकुलर फिनोटाइप चूज़ करते हो टू एग्जामाइन। एज इन केस ऑफ मोर देन वन फिनोटाइप जो है वो इन्फ्लुएंस हो सेम जीन से मोर देन वन फिनोटाइप जो है इन्फ्लुएंस हो। Next, inheritance of two genes. Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in 2 characters. Mendel ने जो है also work किया with and cross करा pea plants that differed in 2 characters, as seen in the cross between pea plant that has a seed with yellow colored and round shape, येलो कलर है और राउंड शेप है, एंड वन शीट दैट हैज़ ग्रीन कलर और रिंकल शेप था। मैंडल फाउंड आउट दैट सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड होती हैं, सीड्स होती हैं। ठीक है, करेक्टर ठीक है। दस येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप जो है डोमिनेंट है ओवर रिंकल। ठीक है, दिस रिजल्ट वॉज आइडेंटिकल टू दोज वी गोट when we made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plants and between round and wrinkled seeded plants। ठीक है, ये जो है सेम आ रहा था जब उनको सेपरेटली कर रहे थे उसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल कैपिटल Y फॉर द डोमिनेंट येलो सीड कलर and small y for the recessive green seed color, capital R for the round shape seeds and small r for the wrinkled seed shape। ठीक है, the genotype of the parent can be written as capital R, small capital R, capital Y and small r, small y। The cross between the two
प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन, ठीक है। तो द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन एज, जैसे कि फिगर में शो कर रखा है, showing the genotype of the parent plant. The gametes कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y यूनाइट कर जाते हैं on fertilization to produce the F1 hybrid capital R small r capital Y small y. When the Mendel self hybridized the F1 plants, we found that 3/4 of the F2 plant जो है येलो सीड एंड 1/4 जो है ग्रीन है। येलो एंड ग्रीन कलर जो है सेग्रीगेटेड हुआ 3:1 रेशो में। राउंड एंड रिंकल शीट जो है ऑल्सो सेग्रीगेट हुआ 3:2 रेशो में, 3:1 रेशो में, जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जब मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाया था द F1 प्लांट को, जब उसने सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाया डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही, तो उसने देखा कि 3/4 ऑफ द प्लांट जो है वो क्या थे, येलो सीड थे, 1/4 ग्रीन थे। येलो जो है येलो और ग्रीन जो है सेग्रीगेट हुआ 3:1 रेशो में। राउंड एंड रिंकल शीट भी जो है ऑल्सो सेग्रीगेट हुआ 3:2 रेशो में, जस्ट लाइक द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर टू पेरेंट्स डिफर्ड इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में जो है वो डिफर कर रहे हैं, सीड कलर और शीट शेप में जो है वो डिफर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया राउंड और येलो कलर का एक प्लांट लिया, दूसरा जो है रिंकल्ड और ग्रीन कलर का लिया। इससे गैमिट्स बने कैपिटल R कैपिटल Y, इससे बना स्मॉल r स्मॉल y। F1 जो है वो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y बने, जो कि सारे जो थे वो राउंड और येलो कलर के थे। जब इन्हें सेल्फ क्रॉस करवाया तो जो है फिनोटिपिक रेशियो की हम अगर बात करें तो राउंड कलर्ड और राउंड येलो कलर जो है वो 9 आए, राउंड जो है वो ग्रीन कलर 3 आए, ठीक है। रिंकल्ड येलो कलर जो है वो 3 आए और रिंकल्ड और ग्रीन कलर जो है 1 आए, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, 9:3:1 आया, 9:3:3:1, 9:3:3:1 आया, ठीक है। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस में द फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड येलो, नहीं हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में द फिनोटाइप राउंड और येलो फिनोटाइप जो था, और जो रिंकल्ड और येलो था, और जो राउंड और ग्रीन था, और जो रिंकल्ड और ग्रीन था, वो अपीयर्ड हुआ इन द रेशियो 9:3:1। Such a ratio was observed for a several pair of characters that the Mendel studied. Several pair of characters के लिए भी हमें यही मिला जो कि मेंडल ने स्टडी किया। The ratio of 9:3:1 can be derived by a combination of 3 yellow is to 1 green and with 3 round is to 1 wrinkle। इसका जो अगर आप मतलब इस दोनों को जो है 3:1 और 3:1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा 9:3:1, ठीक है। बेस्ड ऑन द सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने ऐसे ऑब्जर्वेशन की यानी क्रॉसेस बिटवीन द डिफरिंग इन टू ट्रेड्स, मेंडल प्रपोज अ सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। उन्होंने सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लो बोलता है डेट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं इन अ डाईहाइब्रिड, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। दोबारा बोलते हैं, उसने बोला कि जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स जो कंबाइंड हो एक हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ ट्रेड इज इंडिपेंडेंट, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट होता है टू द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट एग्रीगेशन। हम पुनेट स्क्वायर को जो है इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द 2 पेयर ऑफ जीन्स जो कि ड्यूरिंग म्यूसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ द एग एंड पोलन इन द F1 कैपिटल R कैपिटल Y प्लांट्स।
कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स. सेग्रीगेशन देखो, वन पेयर ऑफ जीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर, 50% ऑफ द गैमीट्स हैव जीन कैपिटल आर एंड 50 जो है उनके पास स्मॉल आर है. नाउ बिसाइड ईच गैमीट हैविंग ईदर आर और स्मॉल आर, it should also have the allele capital Y or small y. The important thing to remember here is that segregation of the 50% R and 50% R small r is independent from the segregation of the 50% capital Y and 50% small y. Therefore, 50% of R जो है bearing gametes has capital Y and the other 50% of has जो है अदर 50% जो होता है उनके पास क्या है, स्मॉल वाई है. सिमिलरली 50% ऑफ द कैपिटल आर के पास जो होता है कैपिटल वाई है और 50% ऑफ द जो है कैपिटल आर के पास जो है वो स्मॉल वाई है. थस देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमीट्स. जीन के गैमीट्स की जो है 4 जीनोटाइप बनेंगी, वो यानी 4 टाइप ऑफ पोलन या 4 टाइप ऑफ एग बनेंगी. तो 4 टाइप आर वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% or 1/4 of the total gamete produced. When you write down the 4 type of the eggs and pollen on the 2 side of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygote that gives rise to F2 plants. Although there are 16 squares, how many different type of the genotype phenotype are formed? Now, Daminda. नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी. मेंडल ने जो है पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस पे जो उसका वर्क था मेंडल ने जो है पब्लिश किया था इन 1865. बट फॉर सेवरल रीजन्स की वजह से जो है ये रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड रहा टिल 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. फर्स्टली द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जो था वो ईजी नहीं था जितना कि आज है. एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश. उसका वर्क जो है पब्लिश नहीं हो पाया. सेकेंड, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसको हम और फैक्टर बोलते हैं इन वेंडर वर्ड्स, एज स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स. ठीक है, एज अ स्टेबल जीन्स एज अ स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट जो कि कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड एंड ऑफ द पेयर ऑफ द एलेली विच डिड नॉट ब्लेंड with each other, was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. Finally, though Mendel's work suggested that the factors yani genes were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of the factor or say that they were made of what they are made of. ठीक है, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरीज, कोरेंस एंड वॉन टेस्मा, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल का रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. Also by this time, due to advancement in the microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe कर पा रहे थे cell division. This led to the discovery of the structure in the nucleus that appeared to double. इसकी वजह से जो है डिस्कवरी हुआ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस. एक स्ट्रक्चर का जो है डिस्कवरी हुआ न्यूक्लियस में जो कि अपियर टू डबल एंड डिवाइड, डबल कर जाता था और डिवाइड कर जाता था बिफोर सेल डिवीजन से पहले जो है वो डबल कर जाता था और डिवाइड कर जाता था. दे वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कलर बॉडीज, जिसका मतलब कलर बॉडीज है, एज दे वर विजुलाइज बाय स्टेनिंग, क्योंकि स्टेनिंग से विजुलाइज हुए थे. बाय 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैव बीन वर्कड आउट. वोल्टन सूटन एंड थियोडोर बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पैरेलल थे टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ. ठीक है, वोल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवरी, उन्होंने नोट किया दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट्स को यूज़ किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ. रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड, आप रिकॉल करो कि आपने क्या स्टडी किया है. रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस.
रिकॉल करो कि आपने बिहेवियर पढ़ा है क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग माइटोसिस यानी इक्वेशन डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन. The important thing to remember are the chromosomes as well as gene occur in pair. क्रोमोसोम जो है और पेयर जीन जो है वो ऑकर करते हैं पेयर में. द टू एलीली ऑफ अ जीन पेयर टू एलीली ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस. टू एलीली दो एलीली जीन टू एलीली ऑफ द जीन पेयर की जो एलीली होती है वो लोकेटेड होती है होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. मियोसिस एंड द जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद द फोर क्रोमोसोम्स. ठीक है. यहाँ पे G1 था, ये डबल हो गया, येलो डबल दो बन गए, ऑरेंज दो बन गए, ग्रीन दो बन गए, रेड दो बन गए. मियोसिस 1 का एनाफेज आया तो येलो जो है ये सब लोग येलो अलग हो गया, रेड अलग हो गया, ग्रीन अलग हो गया, सब लोग एक एक हो गए वापस से. ठीक है. नहीं, जब मियोसिस 1 हुआ तो जो है ये पूरा येलो वाला पूरा पार्ट एक अलग हो गया और ग्रीन वाला पार्ट पूरा एक अलग हो गया. मियोसिस जब 2 आया तो इसके दो क्रोमोसोम्स भी जो है वो सेपरेट हो गए. ठीक है. और जर्म सेल की बात करें तो जर्म सेल जो है ऐसे बने. ठीक है. नेक्स्ट है एक कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. तो ए जो है वो है अकर करता है इन पेयर्स. दूसरा भी क्रोमोसोम जो है पेयर में अकर करता है. सेग्रीगेट करता है एट द टाइम ऑफ द गेमीट फॉर्मेशन such that only one of each pair is transmitted to gametes. Segregate करता है at the time of the formation and the gamete formation only one of each pair जो होता है वो transmit होता है to a gamete. Independent pair segregate independently of each other. Independent pair जो होता है वो segregate करते हैं independently of each other. One pair जो होता है वो segregate करता है independently of the other pair. Other pair का जो है separately करता है. And which represent the gene. During anaphase of the meiosis 1 के anaphase की बात करें तो 2 chromosomes होता है pair can align at the metaphase plate. Anaphase of meiosis 1 के anaphase पे 2 chromosomes होता है 2 chromosome के pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of the 4 different color in the left and right column. ठीक है. In the left column possibility 1 orange and green is segregating together. ठीक है. ऑरेंज और ग्रीन जो है वो सेग्रीगेट हो रहे एक साथ. ऑरेंज और ग्रीन सेग्रीगेट हो रहे एक साथ. ठीक है. बट इन द राइट कॉलम जो है राइट कॉलम में ऑरेंज क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट कर रहा है विद द रेड कलर. ठीक है. पॉसिबिलिटी 1 जो है 1 long orange and 1 short green chromosomes and 1 yellow and 1 red green जो है at the same pole. ठीक है. पॉसिबिलिटी 2 1 long orange and 1 short red chromosome with. ठीक है. जब मियोसिस 2 होगी तो सारे पेयर्स के पास क्या है 2 के पास ऑरेंज ग्रीन होंगे 2 के पास येलो और रेड होंगी. ठीक है. जर्म सेल्स बनेंगी तो ऐसे बनेंगी यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम का. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम का. ठीक है. क्रोमोसोम का जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. सूतन है बोवरी सूतन और बोवरी ने जो है सूतन एंड बोवरी ने जो है आर्ग्यू किया दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी. ठीक है. वो उसका भी सेग्रीगेशन करवा देंगे जो पेयर ऑफ फैक्टर्स जो भी वो कैरी कर रहे हैं. सूतन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन. सूतन ने जो है यूनाइट किया और द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. उसने जो है यूनाइट किया नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को यूनाइट किया विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल और उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. Following the synthesis of the ideas, experimental verification of the chromosomal theory of
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन इनहेरिटेंस जो है वो किसने दिया था, बाय थॉमस हंट मॉर्गन ने एंड हिज कोलीग्स, लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएशन, लीड टू द डिस्कवरी करवाया बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोड्यूस करता है। मॉर्गन ने जो है वर्क किया विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई, उन्होंने जो है वर्क किया था विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई के साथ जो है वर्क किया था, जिसको ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलागोस्टर बोलते हैं, विच वर फाउंड जो कि फाउंड थे वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, जो कि ऐसी स्टडीज़ के लिए जो है बहुत सुटेबल माने जा रहे थे। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल, हम जो है उनको ग्रो कर सकते हैं ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 weeks एंड अ सिंगल मेटिंग जो है तो कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। ऑल्सो देयर वर क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, यानी मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन होता है दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला दिखा रखा है यहाँ पे, ड्रोसोफिला मेलानोगोस्टर दिखा रखा है, ठीक है। ए जो है ये वाला मेल है और ये बड़ा वाला है वो फीमेल है, ठीक है। छोटा वाला जो है मेल है और बड़ा वाला जो है फीमेल है, ठीक है।